Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. Your first semester exam is over and now let's start our syllabus for second term, and today we are going to start first chapter of from history portion, means in book chapter 7. Okay, this chapter we are going to start crafts and industries. Okay, and in this chapter we will read about economic life in India up to the middle of the 18th century, and also progress of crafts and industries in India before the industrial revolution in England, and also we will discuss how trade and commerce promoted crafts and industries in the 18th century, and also we will read how the growth of prosperous urban centers promoted crafts and industries up to the 18th century, and also why the wool and silk producers of England protested against the import of Indian textiles in the early 18th century, and also we will study about how do the names of different textiles tell us about their histories, and also decline of handicrafts in the 19th century, and also what were their drawbacks, ill effects, and also who were the weavers, and growth of industries in the 20th century. Okay, and modern industries in India, and we will read about the what are the modern industries in India. Okay, so first of all let us start first topic, that is economic life in India. Economic life in India up to the middle of the 18th century, and also progress of crafts and industries in India before the industrial revolution in England. Okay, so open your book and let's start chapter 7, crafts and industries. And in this we will study about weavers, आयरन स्मेल्टर्स एंड ऑल्सो फैक्ट्री ऑनर्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. इन दिस चैप्टर वी शैल डील हाउ द ब्रिटिश कंपनी इनिशियली शोड इंटरेस्ट इन द इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. इसमें ये दिखाया गया है, बताया गया है कि शुरुआत में किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे और क्राफ्ट्स थे किस तरह से अपना इंटरेस्ट शो किया, जाहिर किया. बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया जो कि लेटर ऑन एडॉप्टेड वेरियस फेयर और फाउल मीन्स टू क्रश देम. फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारे ही इंडिया के क्राफ्ट्स को और इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे बर्बाद करना और कुचलना शुरू किया. ओके, इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया अप टू द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी. हमारे इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? इंडिया हैड विटनेस्ड ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड यूज ऑफ अर्बन सेंटर्स बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया. ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी बहुत अच्छी थी और प्रोग्रेस कर रहा था. हमारे यहाँ क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज भी प्रोग्रेस कर रहे थे, ट्रेड और कॉमर्स भी प्रोग्रेस कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था. कब तक? ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक. ठीक. प्रोग्रेस ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया. हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज इन इंडिया
before the Industrial Revolution in England. By the middle of the 18th century, various crafts and industries had made great progress in India. By the middle of 18th century में लगभग हमने क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज में अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया. इंडिया enjoyed world fame for her textile industries. इंडिया का नेम वर्ल्ड में फेमस था किस फील्ड में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन क्लोथ. और किस फील्ड में वर्ल्ड फेमस था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ, स्पेशली द मसलिन ऑफ ढाका. जो मसलिन था ढाका का वो ज़्यादा फेमस था. बिग सेंटर्स, मसलिन मीन्स अ वेरी थीन कॉटन मटेरियल, बहुत पतला एक कॉटन मटेरियल होता है. Big factories of cotton textiles were spread over the whole of India. बड़े बड़े फैक्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल्स के इंडिया में प्रोग्रेस कर चुके थे. बट बंगाल, बिहार, गुजरात एंड खानदेश were their special centers where the manufacture and production were the largest, as these areas abounded in huge factories. लेकिन बाकी जगह भी फैक्ट्रीज थे, लेकिन उनकी अपेक्षा में जो अदर जगहों पर थे वो बहुत अच्छी तरह से फैले हुए थे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में थी, बिहार, गुजरात, खानदेश जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आता है, नासिक के पास. ओके, these special centers where the manufacturers एंड प्रोडक्शन वे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता था. अकॉर्डिंग टू पेल्सरेट, पेल्सरेट कौन था? डच मर्चेंट, एक डच मर्चेंट था, ठीक है, हु वर्कड इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी. द होल ऑफ एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओडिशा टू ईस्टर्न बंगाल presented the site of a vast textile factory in a continuous line. जहाँ से हम उसको कहाँ उसके अनुसार हम जब इंडिया में नज़र डालते थे ईस्टर्न बंगाल से ले करके पूरा कॉन्टीन्यूसली उसको टेक्सटाइल फैक्ट्री ही दिखाई देती थी. All the towns and villages of this region were engaged in these factories. और उस एरिया के जितने भी टाउन्स जो विलेजेस थे सब लोग उस इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री में इंगेज थे, उसमें काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे. इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन एंड सिल्कन फैब्रिक्स वर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन इंडिया का जो कि फैब्रिक कॉटन एंड सिल्कन फैब्रिक वर्ल्ड फेमस था. स्पेशली द ढाका मुस्लिम, और ज़्यादातर फेमस था ढाका मुस्लिम. हैड नथिंग टू कम्पीट विद इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और इसका बराबरी कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता था, वर्ल्ड में इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता था. एंड इट वॉज इन ग्रेट डिमांड एवरीवेयर. और ये नहीं कि केवल वर्ल्ड फेमस था, इसकी डिमांड भी हर जगह लगभग थी. The art of weaving and spinning, of making beautiful utensils of copper and bronze, and making superb ornaments of gold and silver, of paper, leather, stone, wood, and ivory works, of making excellent carpets, blankets, and coverings, etc., had all touched the height of excellence. और इन सब फील्ड में हमारा इंडिया बहुत ही आगे था, चाहे वो किसी ब्यूटीफुल यूटेंसिल्स बनाने के फील्ड में हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स सिल्वर या गोल्ड के ऑर्नामेंट से बनाने के फील्ड में हो, चाहे ब्लैंकेट बनाने के फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो वो सबसे आगे था. Along with the cloth industry, the art of China wires and jute work had also made great progress. ये नहीं कि क्लोथ इंडस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं, उनके इसके अलावा भी
एक आर्ट थी, क्या थी, चाइना वायर्स, एंड ऑल्सो जूट वर्क ऑल्सो मेड ग्रेट प्रोग्रेस, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस था. एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेस दैट इंडिया हैड मेड इन द फील्ड ऑफ वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इट अर्न करोर्स ऑफ रुपीज़, और इन सब की वजह से इंडिया को करोड़ों का फ़ायदा होता था. Indian artists and craftsmen were all well off and people lead a contented and prosperous life. और जितने भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट से क्राफ्ट्समैन थे, सब लोग बड़े ही आराम से और बड़े ही खुशहाल पूर्वक रहा करते थे, और संपन्न, उनकी लाइफ कैसी थी, संपन्न थी, जो भी धन दौलत से संपन्न थी. One English historian has rightly remarked, एक इंग्लिश हिस्टोरियंस ने क्या कहा है, when the adventurous European traders set their foot in India, जब यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपने पाँव इंडिया के जमीन पर रखा, तब क्या, its industrial progress was in no way inferior to any advanced country of यूरोप. उसके बाद से धीरे धीरे इनकी जो प्रोग्रेस थी धीरे धीरे कम होती गई. उनका यही था कि हमसे आगे कोई ना निकल पाए. ठीक. इंडिया ऑलवेज अर्न अ गुड डील ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इससे क्या होता था, इंडिया को अच्छी रकम मिल जाती थी, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता था, तो इनको दिक्कत होती थी फॉर यूरोपियंस को, because of its exports which always used to be far ahead of its imports. The various artists and craftsmen all lead a very peaceful and contented life because their articles were much in demand and also because they used to fetch quite reasonable rates. और क्या था, द वेरियस क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिस्ट थे, ये सारे बड़े ही शांतिपूर्वक का जीवन व्यतीत कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जो उनके आर्टिकल्स थे वो बड़े ही डिमांड में थे, उसकी बहुत मांग थी दुनिया में, और भी जो उनके अच्छे मूल्य मिल जाते थे. ये नहीं कि बहुत हाई प्राइजेस लगाते थे, नहीं, उसकी अच्छी मूल्य भी मिल जाते थे. Even after the arrival of the Europeans in India, its exports far exceeded its imports, and also after the arrival of European merchants, Europeans in India, its exports far exceeded its imports. अभी उनके यूरोपियंस के आने के बाद भी जो सामान का बाहर जाना वो बंद नहीं हुआ था. In the beginning, the European merchants treated the Indian artists and crafts in a nice manner. जब स्टार्टिंग में यूरोपियन जब इंडिया में आए थे तो हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैन को और आर्टिस्ट को बड़े ही अच्छी तरह से उनके साथ पेश आते थे. They simply began to buy articles from the producers directly, which were formerly bought by the Indian merchants. और क्या था, they simply began to buy, वो simply क्या खरीदते थे, articles from the producers directly producers से सामान खरीदते थे, which were formerly bought by the Indian merchants. In this way, they did hit the merchant community, but the demand of the articles produced by the Indian artists and craftsmen remained almost the same. इस तरह से उनके जो प्रोडक्शन पर, उनके जो प्रोडक्ट जो होता था उनके पास जो बनाते थे, उस पर थोड़ा सा उनको बुरा लगा, धक्का पहुंचा, फिर भी उनकी जो बेचने की डिमांड थी उनके सामान की, वो आर्टिकल्स की, इंडियन आर्टिस्ट की और क्राफ्ट्समैन की, वो कम नहीं हुई, वो लगभग एक समान ही रही. ओके, सो टुडे ओनली दिस मच.
In next class we will start next topic. Okay, so write down your diary beta. Figures of chapter 4. Okay, do figures of chapter 4. Okay beta, so today only this much. Thank you.